Hello everyone. Now, new chapter is unit number 14, biomolecules. Right? So, in this unit, we have to overview about the certain biomolecules in our curriculum like carbohydrates, proteins, enzymes, hormones, vitamins and nucleic acids. So first we start with the introductory portions, why these biomolecules are important for us. Because this biomolecule, it's a harmonious and synchronous progress of chemical reactions in body which leads to the life. So here first the introduction portions. So we start with the introductions, the most remarkable, right, characteristics of a living system is that it grows, sustains and reproduces itself. This is the most important features of the living system. They grow, they sustain, as well as they reproduce itself. Okay? Another amazing thing about the living system, right? Another amazing thing about a living system is that it is made up of non-living atoms and molecules. Fine. So once again, another amazing thing, what about this living system is made up with a non-living atoms and molecules. So the various chemical change which take place in living system fall in the domain of biochemistry. And we know that the living system are living systems are made up of a number of complex organic compounds, not simple organic compound but complex organic compounds is called as in biomolecules. Okay, and these biomolecules interact with each other and constitute the living system. So the original definitions of biomolecules, so we know that these biomolecules right may be defined as complex, lifeless chemical substance or substances which form the basis of life, They not only build up living system or creatures
right? But are also responsible for their growth, maintenance, and their ability to reproduce. Fine. So biomolecules may be defined as a complex lifeless chemical substance which forms the basis of life, but they do not only build up this living system or creatures, but they are also responsible for their growth as well as maintenance as well as their ability to reproduce. So the various biomolecules like carbohydrates, okay, proteins, enzymes, then nucleic acids, lipids, hormones, and compounds for storage and exchange of energy such as ATP, right? So and ATP, whatever. So various compounds, okay? So some simple molecules like vitamins and minerals, acids also plays an important role in the function of this organism. Therefore, in this unit we will briefly discuss about the structures as well as the functions of some of these biomolecules, not all the biomolecules, but some of these biomolecules. So first, now we start the part 1. Our part 1 is so this is the introductory portions, and now we starts with our part 1 is a carbohydrate. So now our main point is 14.1. It's carbohydrates. So one of the most important class of biomolecules is the carbohydrates, right? This includes compound like sugars, starch, glycogen, cellulose, dextrin, and gum. All they are widely distributed both in animal as well as the plant kingdom. ये दोनों जगह पे है, एनिमल किंगडम में भी है और प्लांट किंगडम में भी है. Yet they are mainly obtained from plants. So they are formed in plants by a process known as photosynthesis and make up almost 70% of the plant material. We know that X mole of CO2 when reacts with a Y mole of H2O in presence of sunlight, and sunlight means in presence of chlorophyll. So this photosynthesis process converts this into CxH2O(Y) and X mole of O2. So this is carbohydrate. This is nothing but it's a carbohydrate. तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट हम बना सकते हैं. देखिए कार्बोहाइड्रेट है ना, वो प्लांट्स में भी है और एनिमल किंगडम में भी है, लेकिन हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो वाइडली हमें प्लांट्स में से मिलेगा. जैसे वो प्लांट्स में से एनिमल में जो चला जा रहा है, वो जो एनिमल में होगा तो वो प्लांट्स की वजह से ही एनिमल में चला जाए. वो आपने फूड चेन में जब आप 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में थे तब आपने पढ़ा हुआ था, राइट? Carbohydrates plays a vital role in our life because it provides our 3 basic necessity of life. एक क्या है? फूड हमें in the form of starch, right? Clothing है in the form of cotton, linen, rayon, right? और cellulose हम इसको बोल सकते हैं. और दूसरा shelter है, right? Wood in making houses and furniture is almost cellulose. जिसको हम वो जो हमारे एक
पिक्चर आया था मनोज कुमार का, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, राइट। सो दीज आर द मेन एसेंशियल सोर्सेस, राइट। तो जो यहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटी हमारी लाइफ की है वो हम यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें दो डेफिनेशंस थी, अभी आपको बायोलॉजी में ओल्ड डेफिनेशंस की तरफ से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ओल्ड और न्यू दोनों मीन्स ओल्ड और मॉडर्न दोनों डेफिनेशंस में आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको ओल्ड डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, ओल्ड डेफिनेशन, ठीक है। सो ओल्ड डेफिनेशंस क्या है कार्बोहाइड्रेट की? सो द नेम कार्बोहाइड्रेट, इसका मीनिंग क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग हाइड्रेट ऑफ कार्बन, मीनिंग हाइड्रेट ऑफ कार्बन, राइट। सो इट वॉज originally given to a class of compound containing only carbon, hydrogen and oxygen. The hydrogen and oxygen being present in the same ratio as well as in water, right? So this compound could therefore be represented in the general formula is like that CxH2OY. So it's an old concept or old definition. But what are the limitations of these definitions? देखिए मैं इसकी limitations, उसकी जो हम मर्यादा बोल रहे हैं, राइट, तो वो क्या है, उसका ड्रॉबैक क्या है? जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, रेमनोज कंपाउंड है। वो रेमनोज कंपाउंड का जो फॉर्मूला है ना वो इस तरह से C6H12O5 है, O6 नहीं है, ठीक है। फिर मैं आपको एक और दिखाता हूं, आपको मालूम है इसको हम बोल रहे हैं डीऑक्सीरिबोज। So this deoxyribose having a formula like that C5H10O4. So they are known as carbohydrates by their chemical behavior, but it cannot be represented as a hydrate of carbon. ये दोनों कार्बोहाइड्रेट फैमिली के ही मेंबर है, लेकिन हम जो इस तरह से डेफिनेशंस यूज करेंगे तो ये इसमें मेंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एक और भी ड्रॉबैक है, देयर आर अदर सब्सटेंस, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ फॉर्माल्डिहाइड है, ठीक है। तो फॉर्माल्डिहाइड को हम किस तरह से दिखा रहे हैं? इसको हम CH2O की तरह से भी दिखा सकते हैं ना, तो उसने इसको फॉलो किया है, बट फॉर्माल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट फैमिली का मेंबर नहीं है। जैसे मेरे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, तो हम इसको जैसे देखिए तो वो इसका फॉर्मेशन जैसे हम बता रहे हैं ना, C2 है, H4 है, O2 है, राइट। तो इसका वो ओबे कर रहा है ये रूल्स का, लेकिन right, which do not behave like a carbohydrate but can be represented by the general formula C6H2OY. एक और ड्रॉबैक पॉइंट भी है, कार्बन इज नॉट नॉन टू फॉर्म हाइड्रेट्स। कार्बन है ना, कार्बन इज नॉट नॉन टू फॉर्म हाइड्रेट्स। ज्यादा हम क्या देखते हैं, मेटल्स होती है ना, मेटल्स, वो हाइड्रेट्स अच्छी तरह से दिखा रहा है। कार्बन तो नॉन मेटल्स है, तो इस तरह से कार्बन ये वाटर के साथ जुड़ेगा ऐसा कुछ हम दिखा सकते नहीं है। तो ये मैंने क्या दिखाया आपको, ओल्ड डेफिनेशंस का कॉन्सेप्ट दिखाया। लेकिन अब देखिए फ्यूचर में जो भी बच्चे बी ग्रुप में है और वो जो मेडिकल में जाएंगे तो उसको एक सब्जेक्ट आएगा बायोकेमिस्ट्री। तो जो बायोकेमिस्ट्री की यहाँ पे जो शुरुआत हो रही है वो मैं उसको आपको मॉडर्न डेफिनेशन से समझाना चाहता हूँ। दिस इज मॉडर्न डेफिनेशन। सो नाउअडेज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट is given on the knowledge of your chemistry knowledge. Okay, so carbohydrates are defined as a, देखिए इसका कंडीशंस क्या है आप देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए आप ऑप्टिकली एक्टिव हमें मालूम है वो जो कायरल कार्बन होना चाहिए, राइट। पॉलीहाइड्रोक्सी और पॉलीहाइड्रोक्सी सॉरी एल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, यानी ये क्या होना चाहिए, कीटोन्स और सब्सटेंस विच गिव्स दीज ऑन हाइड्रोलिसिस और सब्सटेंस which give
दिस ऑन हाइड्रोलाइसिस। देखिए, एक तरह से देखेंगे तो इसमें 3 कंडीशंस आपको दिखाई देंगी। ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, यानी ये कंपाउंड है आपका कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो मैंने यहाँ पे दिखाया है पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, यानी मोर देन 1 OH होना चाहिए। तीसरा आइदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप उसमें होना चाहिए। ये तीनों आपको दिखाई दे पड़े तो ही हम समझ सकते हैं कि नाउ दिस कंपाउंड इज द पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैमिली। और क्या हो सकता है दूसरा, जैसे मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है तो उसको मैं हाइड्रोलिसिस करके भी मुझे कुछ इस तरह से मिल सकता है, तो भी उसको हम कार्बोहाइड्रेट फैमिली में लगा सकते हैं। सो इट मे बी नोटेड हियर दैट इन एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप इन कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट प्रेजेंट एज सच, बट यूजुअली एग्जिस्ट इन द कॉम्बिनेशन विथ वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ हेमीएसिटाल्स एंड हेमीकीटाल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी की बात मैंने यहाँ पे दिखाई है। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आपको जो फ्यूचर में यही कॉन्सेप्ट आएगा। ये ओल्ड है, तो छोटे बच्चे को मुझे 8th और 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को मुझे पढ़ाना है तो मैं इस तरह से उसको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अगर बच्चा स्मार्ट हो गया तो मुझे यहाँ यहीं से पकड़ लेगा कि सर जी ये डीऑक्सीरिबोस का फॉर्मूला है, तो वो क्यों यहाँ पे इस तरह से उसका ओबे नहीं कर रहा है। तो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है, लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन आपको तभी उसको पता चलेगा कि आपको उसके कायरल कार्बन क्या है, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, डेक्स्ट्रोलीवो क्या है, पोलर इमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सभी उसको समझना पड़ेगा जो हमने हेलो अल्केन हेलो एरिन में पढ़ा हुआ है। और फिर बाद में हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की वजह से हम उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए अच्छी तरह से आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी जो मैं एक और यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ, ये जो मैंने कार्बोहाइड्रेट्स का है ना सिंपल मैंने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अभी मैं जो यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ वो है 14.1.1, राइट। 14 पॉइंट हम मेरी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक और उसको पूरी डेप्थ से हम दिखाना चाहते हैं। सो इट्स अ वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है ना कुछ करना चाहते हैं, यानी क्लासिफिकेशन किस तरह से हो सकता है। तो मैंने अभी आपको बोला था कि कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हम देख रहे हैं उसको हम कई बार क्या बोल रहे हैं आपको मालूम है, उसको हम सैकेराइड भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सैकेराइड्स। देखिए दूसरा नाम उसका क्या है? सैकेराइड्स। सैकेराइड्स ग्रीक मीनिंग है सैकेरॉन, मीन सुगर, right? So these are classified in the following 3 class depending upon their behavior towards hydrolysis. वो हाइड्रोलाइसिस हम करेंगे ना, उसकी वजह से ही हम उसको पता चलेगा हमें। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि इसका कोई हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगा। ये ऐसा सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, दिस आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। यहां से और स्मॉलर नहीं हो सकता है, यानी इसका जो फॉर्मूला है ना वो कुछ CH2ON जैसा हो सकता है, वेयर N इज इक्वल टू आइदर 3, 4, 5, 6, 7 कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया, उसका हाइड्रोलिसिस हो नहीं सकता है क्योंकि अभी वो लास्ट पोर्शन यानी वो सिंपलेस्ट है, वो अनडिवाइडेबल भी हो जाएगा। तो इट्स अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड नाउ इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। सो द जनरल फॉर्मूला फॉर दिस इज अ CH2ON। दूसरा है ना वो है ओलिगोसैकेराइड। वो क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओलिगो? यहाँ पे ओलिगो जो फॉर्म है ना वो ग्रीक फॉर्म है, इसका मतलब है फ्यू, थोड़े, राइट। दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, राइट। सो ऑन हाइड्रोलिसिस इट्स गिव 2 to 10 molecules, 2 to 10 molecules of monosaccharides,
2 से 10 यानी इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इधर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड। यानी ये क्या हुआ, जो मोनोसेकेराइड एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो डाइसेकेराइड, फिर ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड। यानी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं डाई टू डेकासेकेराइड्स का जो पोर्शंस एक बन रहा है, पॉलीमर का पोर्शंस है, तो उसको हम ओलिगोसेकेराइड्स की तरह से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स एक्चुअली ऑब्टेन्ड अपॉन द हाइड्रोलिसिस, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डाई, ट्राई, टेट्रा। इसमें हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। जैसे मैं यहाँ पे आपको डाई सेकेराइड्स की बात कर रहा हूं, डाई सेकेराइड्स। तो डाई सेकेराइड्स का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस, राइट। सो विच अपॉन हाइड्रोलिसिस, मैं थोड़ा उसको शॉर्ट में करता हूं, मैं पूरा नहीं लिखता हूं। हाइड्रोलिसिस गिव टू molecules of the same or different monosaccharides। यानी ये दो मोनोसेकेराइड सेम है या अलग अलग होते हैं मोनोसेकेराइड्स, उसको जुड़ के ये हम डाइसेकेराइड से हम बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास है सुक्रोस, आपने पढ़ा हुआ है, राइट, ये मेरे सिलेबस में भी है, सुक्रोस है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ माल्टोज है, लैक्टोज है, लैक्टोज है, एक्सेट्रा, राइट। और इसकी जनरल फॉर्मूला क्या होती है, C12H22O11, C12H22O11, ये उसकी जनरल फॉर्मूला है। ये मैंने अभी जो आपके साथ बात की थी वो मैंने किसके लिए बात की थी, ओलिगोसेकेराइड्स में डाइसेकेराइड की बात की थी। अभी हम ओलिगोसेकेराइड में ट्राइसेकेराइड की भी बात करेंगे, ठीक है। ओके, अब ट्राइसेकेराइड में देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस, राइट, गिव्स व्हाट, so it gives three molecules of the same or different, right, either same or different monosaccharides जो दिखा सकता है, monosaccharides, right, are called as a trisaccharides। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल इसमें देना चाहता हूँ, रेफिनोज है मेरे पास, रेफिनोज है, राइट, विच इज अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ ईच, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। इसका जो जिससे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 मोनोसेकेराइड्स, डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स से बना हुआ था, तो वो तीनों यहाँ पे अलग हो जाएंगे। जैसे ग्लूकोज भी अलग हो गया है, फिर एक फ्रुक्टोज है तो फ्रुक्टोज भी अलग हो गया है, और एक गैलेक्टोज भी अलग हो गया है, गैलेक्टोज है, वो तीनों यहाँ पे अलग अलग हो गए हैं। उसकी जनरल फॉर्मूला क्या होती है, जैसे हम यहाँ पे दिखाएंगे, C18 होगा, H32 होगा और O16 होगा। यानी जैसे दो मोनोसेकेराइड एक दूसरे से जुड़ेंगे ना तो वो पानी निकाल देंगे। तो आपको जैसे मैंने बताया था C12H22O11, इस तरह से हम 3 जोड़ के 2 पानी का मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे तो ट्राइसेकेराइड का फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको ट्राइसेकेराइड्स बताया ना, मैं एक और आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, टेट्रासेकेराइड्स। मैं टेट्रासेकेराइड्स की आपके साथ बात करूंगा। तो ये तो यही है ना कि कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव अ 4 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या होगा, गिव 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स। यानी मेरे पास टेट्रासेकेराइड्स की मतलब ये हुआ कि मेरे पास ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको मैंने हाइड्रोलिसिस किया तो उसमें से 4 मॉलिक्यूल्स आइदर सेम और डिफरेंट अलग हो गए हैं, आइसोलेट हो गए, तो उसको हम टेट्रासेकेराइड बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स इस तरह से भी देना चाहता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है स्टाइचरोज,
राइट, विच इज अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स वन मोलिक्यूल ईच ऑफ, जैसे मैंने इसको हाइड्रोलिसिस किया हुआ है, देखिए ये मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया हुआ है, तो मुझे हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या मिल रहा है अब देखिए। तो ये तो प्रैक्टिकल पॉइंट से मैं आपको समझा रहा हूं। तो जैसे एक ग्लूकोज मुझे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स मुझे मिला, दूसरा एक मेरे पास फ्रुक्टोज आ गया है, देखिए, और 2 गैलेक्टोज आ गए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैलेक्टोज, ठीक है। तो उसकी जनरल फॉर्मूला क्या होगी, C24H42O21। अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो डाइसैकेराइड्स की बात कर रहा हूं, देखिए, सॉरी ओलिगोसैकेराइड्स की बात कर रहा हूं। These are the carbohydrate which on hydrolysis, right, gives 2 to 10 molecules of monosaccharides, right? So depending upon the number of monosaccharide molecules actually obtained upon hydrolysis, they are further classified into di, tri, tetra। तो इस तरह से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये मैंने अभी क्या समझाया आपको, ओलिगोसैकेराइड्स की बात की। अभी तीसरा जो हम यहाँ पे जो मेन है मेरा क्लासिफिकेशन था वो है पॉलीसैकेराइड्स। सो पॉलीसैकेराइड्स में क्या होगा अब देखिए। सो इन द केस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स, राइट, तो हाइड्रोलिसिस हम करेंगे तो हाइड्रोलिसिस गिव अ लार्ज नंबर of monosaccharide, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स हमें मिलेंगे। सो द मोस्ट कॉमनली अकरिंग पॉलीसैकेराइड्स, इसमें से हम एग्जांपल्स का देना चाहेंगे तो क्या होगा, तो कि मेरे पास एक स्टार्च है, दूसरा मैं यहाँ पे सेल्यूलोज भी लगा सकता हूँ, सेल्यूलोज है, तीसरा मेरे पास ग्लाइकोजन भी है, ग्लाइकोजन। सो दे all the examples of polysaccharides and their general formula is C6H10O5N, where N क्या हो सकता है 100 to 3000 तक यहाँ पे लगा सकते हैं। ये पॉलीमर है, ठीक है। तो ये पॉलीसैकेराइड्स का मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिया हुआ है। तो ये जो अभी आप पोर्शन समझ रहे हैं वो अभी आप कार्बोहाइड्रेट में है, और कार्बोहाइड्रेट में हम उसका क्लासिफिकेशन करा रहे हैं। लेकिन क्लासिफिकेशन का मेरा बेस क्या है, क्योंकि हमारा जो क्लासिफिकेशन का जो बेस है ना, वो जो बेस है हमारा हाइड्रोलिसिस का बेस हमने यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। अभी हम उसके बाद हम एक शुगर, जैसे हम शुगर्स की बात करेंगे तो शुगर्स क्या है और नॉन शुगर्स क्या है। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज ए शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। जैसे हम इसको शुगर और नॉन शुगर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल मोनोसैकेराइड, जैसे देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड, राइट, ये मोनो एंड ओलिगो, राइट, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, बराबर है, soluble in water and mainly sweet in taste. So they are collectively called as a what, sugars. But polysaccharides है ना जो अलग है, वो जो नॉन शुगर में चला जाएगा। नॉन शुगर में क्या है, पॉलीसैकेराइड्स आ रहा है, नॉन शुगर पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड्स में क्या होगा, वो एमरफस है, वो क्या है, एमरफस है, एमरफस सॉलिड ही है, ठीक है, एमरफस सॉलिड्स है, इनसॉल्यूबल इन वाटर है, क्योंकि उसका मोलिकुलर वेट इतना बढ़िया है कि वो वाटर में पूरी तरह से डिसोल्व नहीं हो पा रहा है, राइट। और तीसरा हम उसका इस तरह से भी बता सकते हैं वो टेस्टलेस है, जैसे हमें कोई स्टार्च और सेल्यूलोज का कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ए नॉन शुगर, ठीक है। तो उसको इसकी वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं, नॉन शुगर्स बोल रहे हैं। फिर अभी क्या आएगा, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी आ जाएगा, कि उसको हम रिड्यूसिंग शुगर भी बोल सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में भी हम इसको डिवाइड करेंगे। लेकिन ये हम फ्यूचर में आपको समझाएंगे कि कौन सा रिड्यूसिंग है और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। तो उसको रिड्यूसिंग, वो इस तरह से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि
जैसे ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट्स जिसके पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है और हेमीएसिटाल और हेमीकीटाल ग्रुप है, तो वो टॉलेंस रिएजेंट्स या फेलिंग सॉल्यूशंस का साथ प्रोसेस करेंगे तो हम रिड्यूसिंग बोलेंगे, यानी उसको शुगर भी हम बोल सकते हैं। लेकिन जो दूसरे है उसको हम नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल मोनोसैकेराइड्स वेदर अल्डोज और कीटोज हैविंग अ रिड्यूसिंग शुगर। डाइसैकेराइड में जैसे सुक्रोज है, उसके पास 2 मोनोसैकेराइड है लेकिन वो इस तरह से जुड़े हुए हैं कि उसके एल्डिहाइड और कीटोन है ना खत्म हो गए हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में डाल देंगे। तो ये मैं फ्यूचर में आपको इसका स्ट्रक्चर्स के बारे में समझाऊंगा। तो आज मैंने यहाँ पे आपको इस लेसन का इंट्रोडक्शन और उसका कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, इसकी मॉडर्न डेफिनेशंस क्या है, ओल्ड में दिक्कत क्या थी और इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से हो रहा है, तो उसके बारे में आज हमने सब कुछ यहाँ पे देखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लेक्चर है तो मैं इस डिस्क्रिप्टिव की वजह से ही मैं जाना चाहूंगा, और इसमें आप देखिए, आप अपनी तरह से भी कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कीजिए। बी ग्रुप वाले जो भी बच्चे हैं उसने ये सब कुछ, उसने 11th बायोलॉजी में उसका जो पोर्शन है वो यहाँ पे उसने किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम केमिस्ट्री की वजह से यहाँ पे हम देखना चाहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।